آج المبارک کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کا عنوان ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، رسول جو دیں اسے لے لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بستی والوں سے فری میں دے دے، مفت میں دے دے، تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے، تاکہ دولت تم مالداروں کے درمیان ہی نہ رہ جائے، اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے قبیلے جو مدینہ کے قریب آباد تھے، جنہیں بنو نذیر کہا جاتا تھا، ان کی جلا وطنی کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو کچھ مال حاصل کیا، چاہے زمین کی شکل میں ہو، چاہے ان کے گھر جائیداد اور زیورات یا ہتھیار کی شکل میں ہو، اسے مال فے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام نے لڑائی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو لڑنے کے بعد جو کچھ مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، دشمن سے جو کچھ مال پاتے تھے اسے غنیمت کہا جاتا تھا، وہ انہی فوجیوں کے اندر بانٹ دیا جاتا تھا۔ 5واں حصہ نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا جاتا تھا۔ آپ جہاں چاہتے اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے مرضی مطابق جہاں چاہتے خرچ کرتے تھے، اور اس کے بعد باقی حصہ 4/5 یہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ لڑائی کی نوبت نہ پیش آئے، بغیر لڑائی کے ہی دشمن شکست مان لے، تو اس سے جو کچھ مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے، یعنی جو فری میں دے دے۔ اللہ نے اس کا یہی تذکرہ کیا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فے کے طور پر دے دے، یعنی فری میں دے دے، مفت میں دے دے، جس پر صحابہ کرام نے اپنے گھوڑے اپنے اونٹ نہ دوڑائے ہو، لڑائی نہ کی ہو۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں گے اپنی مرضی سے اس کو خرچ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے یہ بھی آگے حکم دیا کہ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، یہ قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچہ نکال لیتے تھے، اور یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں کو جس کو اپنی ضرورت مطابق سمجھتے تھے، مناسب سمجھتے تھے، دیتے تھے، اور باقی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کر دیتے تھے، اس کے سامان کی تیاری میں لگا دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ یہاں جو آخری ٹکڑا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی آج درس کا موضوع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اللہ کے وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، وہ اس کی تعویل کرتے کہتے ہیں دیکھو یہاں تو مال فے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مال فے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جہاں جس کو چاہیں دے، جس کو چاہے نہ دے، تو جس کو دے وہ لے لے، جس کو نہ دے وہ باز آ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ ایسے لوگوں کا قول ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جو علماء اہل سنت ہیں وہ متفقہ طور پر سب یہی سمجھتے ہیں اور یہی صحیح ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اصول دیا ہے کہ چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، یا کسی دین کے بنیادی معاملے کے تعلق سے کوئی حکم ہو، یا فروعی مسئلے کے تعلق سے کوئی حکم ہو، جزیات کے تعلق سے کوئی حکم ہو، جس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بھی حکم دیں، جو بھی مال دیں، جو کچھ بھی دیں، آپ اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا ہے اور دیگر محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکام میں چاہے مال فے کا واقعہ ہو یا کوئی بھی قرآن و سنت کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے احکام میں اور شریعت کی اتباع میں
इतनी मसलहतें होती हैं कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते। तो सारी मसलहतों को कभी कभी हम पता भी नहीं लगा पाते कि इस हुक्म के अंदर क्या मसलहत। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म समझ करके मुसलमान रोजा रखते चले आए और जितनी फजिलतें उसकी है, जितनी दुनियावी अखरवी फायदे हैं, सब हासिल करते रहे। अब नई नई तहकीकात निकलती हैं कि रोजे के ये भी फायदे हैं, वो भी फायदे हैं, जो पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन हासिल होती थी। ना जानने से इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जानते तो हासिल भी नहीं होती थी। रोजा रखने से उन्हें वो फजीलतें, वो फवाइद दुनिया और आखिरत की हासिल होती थी। तो लोग जितना तहकीक करते हैं उतना उसके अंदर मसलहतें जाहिर होती हैं, तो बेशुमार मसलहतें होती। तो सारी मसलहतों को समझने की, जानने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक यहाँ कायदे कुल्लिया दे दिया है, एक आम उसूल मुकर्रर कर दिया है कि रसूल जो भी तुम्हें हुक्म दे उसको तुम मानो, उसकी पैरवी करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है दुनिया और आखिरत में। तो कहते हैं इससे मालूम हुआ इस आयत करीमा से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ये फर्ज है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई बात अगर आप तक पहुंच जाए सही सनद के साथ तो वो गोया कि अल्लाह ही का हुक्म है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पर भी सूरह निसा के अंदर साफ फरमा दिया है, वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो रसूल के इताअत करता है वो गोया अल्लाह ही के इताअत कर रहा है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो रसूल का हुक्म भी अल्लाह ही के हुक्म की तरह है, और उससे इनकार करने की, उसको छोड़ने की किसी के लिए कोई उज्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी उज्र की बिना पर कोई आदमी कोई बात छोड़ दे, ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त नहीं है। और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाने के बाद अपनी राय को मुकद्दम करने या किसी और की राय को मुकद्दम करने की कोई गुंजाइश है, कोई इजाजत। ये तफसीर सादी के अंदर उन्होंने बड़ी बेहतरीन तफसीर की है, लिखा है। ये तो मुख्तसर मैंने हज़रात के सामने खुलासा पेश किया, आप चाहे तो वहां पढ़ सकते हैं। और देखें यही आयत को लेकर के अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुछ औरतों पर लानत की कि गोदने वालियों पर, गोदना गुदाने वालियों पर, यानी जो टेटू बनवाते हैं अपने बदन पर उसे गोदना कहते हैं। जो गोदने वाली हैं, जो गुदवाने वाली हैं, जो अपने चेहरे के बालों को भवें उखाड़ने वाली हैं, जो अपने दांतों में गैस करवाने वाली हैं, ये सब पर अल्लाह की लानत है। ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करने वाली हैं, सब पर अल्लाह की लानत। अब ये बात एक बनु असद कबीले की एक औरत को, जिनका नाम उम्मे याकूब था, उन्होंने जब सुना तो कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आई और कहने लगी कि अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या आप फला फला औरतों पर लानत करते हैं? तो कहा हाँ, मैं ऐसे लोगों पर क्यों ना लानत करूं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और जो अल्लाह की किताब में मौजूद है। तो औरत ने कहा कि मैंने तो पूरी किताब पढ़ी है जो दो दफ्तियों के दरमियान है, पूरा कुरान पढ़ डाला है, कहीं भी ऐसी कोई आयत नहीं है, अल्लाह का कहीं ऐसा हुक्म नहीं है कि फला फला औरतों पर लानत। तो कहा तुम अगर गौर से पढ़ती तो तुम्हें जरूर मालूम पड़ता। देखें साहबे किराम की समझ देखें, सोच देखें, मर्द भी औरतें किस तरह से कुरान को पढ़ते थे समझकर, और आज हम कुरान को किस तरह से पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो औरत ने कहा मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, समझ कर पढ़ा है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला है। तो ये कहते कि अगर तुमने गौर किया होता, ठीक से समझी होती तो तुम्हें मिलता। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी है, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। कहा हाँ, ये आयत तो मैंने पढ़ी है। तो कहा कि फिर रसूल ने हमें जब ये चीज दी है कि फला फला पर लानत की है ऐसे औरतों पर, तो मैं लानत क्यों ना करूं, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। तो सहाबी रसूल अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने इस आयत से इस्तेदलाल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यहाँ सिर्फ मालिक तय के लिए नहीं, बल्कि दीन के हर हुक्म के लिए, कि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दें, जो कुछ रहनुमाई करें, सबको लेना है। तो इन्होंने समझाया और उम्मे याकूब ने समझ भी लिया कि हाँ आप सही कह रहे हैं। उसके बाद समझ करके चली गई, और सहाबा इकराम में इसके ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ कभी नहीं पाया गया कि नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जरूरत नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने फितना खड़ा किया है जो गुमराह हुए हैं। इसी तरह से और भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, और मुस्नद अहमद के अंदर दीगर हदीस किताबों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से बुखारी मुस्लिम ही के अंदर और भी दूसरी रवायतें बहुत वाज़ेह मौजूद हैं, जैसा कि रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़इज़ा नहयतुकुम अन शैइन फज्तनिबूहु, जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना करूं तो उससे भाग आ जाओ, उसको छोड़ दो। वइज़ा अमरतुकुम बिअमरिन
फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम, जब मैं तुम्हें किसी मामले के ताल्लुक से हुक्म दूं कि ऐसा करो, तो अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल करो, जितना तुमसे हो सके अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक उस पर अमल करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ और सरी हुक्म है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हटने की गुंजाइश नहीं है। जो लोग किसी भी बहाने से, किसी भी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तोड़ते हैं, वो गोया कि अल्लाह से नाफरमानी कर रहे हैं और वो गुमराही का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और हो सकता है उनको दुनिया के अंदर भी उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए और आखिरत के अंदर तो अज़ाब से मुस्तहिक होंगे ही। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक आदमी उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा मैं नहीं खा सकता। तकब्बुर में उसने बात कही, वरना कोई मजबूरी नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ना ही खा सके। कहते हैं साहबा कि उसके बाद जिंदगी भर उस आदमी का सीधा हाथ उसके मुंह तक नहीं गया। तो ये अल्लाह की तरफ से उसको गोया की सजा मिली। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो सुनने के बावजूद भी तकब्बुर में आकर के छोड़ देते, इनकार कर देते हैं, गोया कि उनके अंदर तकब्बुर पाया जाता है और ऐसे लोग अल्लाह के अज़ाब से मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुक्मों की पैरवी तौफीक नसीब फरमाए और आपकी नाफरमानी से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।